Good evening, everyone. All right. Good evening. So we have great. So we have completed. I think our economics part has been completed. We completed our globalization and the Indian economy last week, isn't it? Yes. So this time we'll be starting up with political science and we'll finish up political science, right? So what I remember is that we have already completed 2 chapters of political science. One was power sharing and one federalism. I think these 2 chapters are completed and 2 chapters of political science are still left. The political parties and outcomes of democracy, isn't it? Isn't it? Yes. All right. So today we'll be starting up with the 3rd chapter of political science, that is political parties. Now that you all might be knowing that your CBSE board exams have been delayed a lot, isn't it? They are now scheduled in the month of May, right? So we have ample time. I'll try to finish up your syllabus within, the next 6 or 7 lectures. Uh, so let's start up with political science 3rd chapter, which is political parties. So political parties is a chapter that deals with that what kind of political parties do we have in India, what is the requirement of the political party system that we have in India, why this particular kind of political system is only there in India and why not some other political system is there in India. So we need to discuss on that also. The types of political parties that exist in India, that also we are going to discuss. We are going to learn about some very prominent national political parties of India, and their features, that they were founded by whom, and what are their ideologies and all, and in which states they have their presence. So and the political system that we have, or the challenges which are faced by the political parties. So these are the sorry, these are the things that we are going to study in this chapter, political parties. So before we started this chapter, first we need to know that what do we mean by a political party, right? Let me share the document with you. Yes, here it is. So this is what we have, the chapter political parties, and this chapter starts with that what political parties are and what is the importance of political parties in a democracy like India, right? Wherever beta my voice is not audible or is not clear, please let me know, right? Okay. So as we know that what political parties are, अगर if we go to common people, अगर आम जनता के पास जाया जाए, ऑर्डिनरी लोगों के पास जाया जाए, लेमैन के पास जाया जाए और उनसे पूछा जाए कि बताइए डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है? तो वो लोग शायद there would be many people who won't be able to describe democracy, right? Even कि हमारे अपने एजुकेटेड जो लोग होंगे, आगे पीछे बहुत एजुकेटेड लोग होंगे, उनको भी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो है, ठीक है, वो देना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो या बड़े लोगों को बस ये लगता है कि डेमोक्रेसी वो है जिसमें इक्वल राइट्स देते हैं जी लोगों को, या कई लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी वो है जिसमें लोग वोट डालते हैं। लेकिन हमें पता है, आपको पता है, क्लास 9th में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली किस तरह की गवर्नमेंट है, ठीक है? व्हाट आई मीन टू से इज
कि although we people might not be knowing what the true meaning of democracy is, but we definitely know कि जब 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 वोटिंग का टाइम आता है तो हमें पूरा पता होता है कि किसको वोट डालने हैं, वोट क्या होता है, उसके डालने से क्या होगा और हमें किसको वोट डालने हैं, isn't it? ठीक है, एक लेबरर से, एक अनएजुकेटेड वेरी रूरल पीपल ऑल्सो वुड बी नोइंग कि उनको किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालने हैं। ठीक है, तो what I mean to say is that probably people might not be knowing the meaning of democracy, but they do know about the political parties which are present in their area or to whom they have to vote. Right? So, political parties are the most visible institution in a democracy. This is the first line of your chapter, or I think now you have understood the meaning of how political parties are the most visible institutions of democracy. मुझे लगता है कि आपको पता चल गया है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि चाहे डेमोक्रेसी के बारे में लोगों को पता है कि नहीं है, चाहे उनको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि क्या होता है, क्यों होता है, ये पता है कि नहीं है, लेकिन उनको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जरूर पता है। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। कैन डेमोक्रेसी एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज? No, right? So as we all know that a representative democracy can never exist without political parties, and people are so well informed about political parties. ठीक है, हमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बिल्कुल पता होता है, किसको वोट डालना है सबको पता है। गांव, बड़े पिछड़े हुए गांव के लोगों को भी पता होगा कि जी इलेक्शन आ रही है तो किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालना है, सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन क्या इस पॉपुलैरिटी का मतलब ये है कि सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद भी करते हैं? नहीं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बहुत नेगेटिव व्यूज हैं हमारे लोगों के। ठीक है, हमारे लोगों के पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव व्यूज हैं। ठीक है, वो नेगेटिव व्यूज क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज जी गलत करती हैं, झूठ बोलती हैं, करप्शन करती हैं। उस सब के बावजूद हम सबको अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता होता है कि हमने किसको वोट डालने हैं, किसको नहीं डालने हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमें अच्छी लगती है, कौन सी खराब लगती है। और हमारे अपने व्यूज हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि ये पॉलिटिकल पार्टी तो बड़ी अच्छी है, ये पॉलिटिकल पार्टी बड़ी खराब है। ठीक है, सो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, हालांकि जो भी कुछ गलत होता है, सपोज आजकल कुछ गलत हो रहा है अगर हमारे देश में, तो हम पॉलिटिकल पार्टीज पे डाल देते हैं जी बीजेपी रूल नहीं ठीक कर रही है इसीलिए ये सब गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें सब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पे कसूर नहीं डाल सकते क्योंकि उन पॉलिटिकल पार्टीज को हमने चुना है, हमने नहीं तो वोट डाला है, तभी तो वो रूलिंग पार्टी बनी है। ठीक है, तो इसीलिए so whatever, लेकिन we people have a tendency to blame political parties for whatever is happening wrong in our political life, right? तो political parties जो है वो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच में डिस्कस होने वाली चीजें हैं आजकल। ठीक है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज होती कैसे हैं, बनती कैसे हैं, और किस किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। राइट, so if we look at the meaning of political party, what actually political party is, political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. कुछ लोग इकट्ठे होके सोचते हैं कि चलो इलेक्शन लड़ें और गवर्नमेंट बनाएं, वो लोग बना लेते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया में यू
can make as many political parties as you want. We can have as many political parties as we can make, right? अगर मैं चाहूं कि मुझे लगता है कि जी मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनाऊंगी, कुछ नाम दूंगी, थोड़े से लोगों को इकट्ठा करूंगी और फिर उसको इलेक्शन कमीशन में जाके रजिस्टर कर दूंगी, ये जी मेरी पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का एक मेन एम होता है बेटा, ये आप सारे बच्चे याद रखिएगा। पॉलिटिकल पार्टी का एक मेन एम होता है, वो क्या होता है? इलेक्शंस लड़ना और गवर्नमेंट बनाना। इलेक्शंस लड़ना, इलेक्शंस जीतना और गवर्नमेंट बनाना। दिस इज द मेन एम ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो जो कहती है कि नहीं जी मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने हैं, मैंने सिर्फ लोगों की भलाई करनी है? ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है? तो हमारे इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी की सारी इलेक्शन लड़ना चाहती हैं और इलेक्शन जीतना चाहती हैं। दैट इज द मेन एम। उनकी डेफिनेशन में ही है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, राइट? हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, अपनी पॉलिसीज होती हैं, अपनी आइडियोलॉजी होती है, ठीक है? और हर एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं, या करती हैं कि नहीं करती वो अलग बात है, लेकिन उनको लोगों की भलाई के लिए काम करना पड़ता है, तभी तो लोग उनको वोट देंगे, ठीक है? सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। कलेक्टिव गुड होता है कि सारे लोगों का की भलाई करनी, उनके वेलफेयर के बारे में काम करना, ठीक है? तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी तरह से सोचती है कि जी हम लोगों की भलाई कैसे कर सकते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि हम लोगों सारे लोगों को पढ़ाई करवा के उनकी उनकी भलाई कर सकते हैं, जी पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो उनकी आइडियोलॉजी में मेन होता है एजुकेशन। कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं एजुकेशन नहीं, हम कई पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो सोचेंगी कि जी जेंडर इक्वालिटी लाएंगे तो लोगों की भलाई होगी, तो उनकी आइडियोलॉजी होगी जेंडर इक्वालिटी, ठीक है? कई पॉलिटिकल पार्टी सोचती हैं कि अरे नहीं, एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर कास्ट को अगर हम बढ़ावा देंगे तो हम हमारे लोगों की भलाई हो सकती है, ठीक है? हालांकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट या रिलीजन के नाम पे वोट मांगना गलत है, ठीक है? लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो रिलीजन या कास्ट बेस्ड वोट्स जो हैं वो मांगती हैं, ठीक है? तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी पॉलिसीज होती हैं, अपने प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके थ्रू वो लोगों को ये जताती हैं कि हम लोग आपकी भलाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है? और पॉलिटिकल पार्टीज आर द फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन इन अ सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं पता है आपको, सोसाइटी को डिवाइड कर देती हैं। डिवाइड किया है ना, हमारी इंडिया में अब सोसाइटी डिवाइडेड है। कोई लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जी बीजेपी बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, कई लोग कहते हैं नहीं जी बीजेपी गलत है, कांग्रेस अच्छी है, कई लोग कहते हैं कि ना बीजेपी अच्छी है ना कांग्रेस अच्छी है, आम आदमी पार्टी अच्छी है, ठीक है? तो इसी तरह लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, और उन्हीं बेसिस पे लोग जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। और आजकल ये डिविजन्स, पॉलिटिकल डिविजन्स जो हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट है हमारी सोसाइटी में। पहले इतनी पॉलिटिकल डिविजन्स नहीं होती थी, लेकिन जब से मीडिया और इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है पॉलिटिक्स के बारे में, सो पीपल हैव बीन रियली इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स नाउअडेज, राइट? तो वो सारे लोग क्या करते हैं कि डिवाइड हो गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिस पे। कास्ट, रिलीजन और जेंडर और बाकी बेसिस, रेस के बेसिस पे तो लोग डिवाइडेड हैं ही हैं। आजकल नई पॉलिटिकल डिवीजन, आजकल नई डिवीजन आ गई है सोसाइटी में, पॉलिटिकल डिवीजन। सो पीपल आर आल्सो डिवाइडेड एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज पार्टीजनशिप, ठीक है? पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। पार्टीजनशिप क्या होता है? A partisan is a person who is strongly committed to a political party
and is not in a condition to take a balanced view. पार्टीजनशिप एक बड़ी ही नेगेटिव टर्म है, आपको पता है, ये अच्छी चीज नहीं है। पार्टीजनशिप क्या होता है कि जिससे कि लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी बुरी गलत सही सारी बातें जो हैं वो मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड एज पार्टीजनशिप। ठीक है, when a person is strongly committed to a party and it has a tendency to take side and inability to take a balanced view is called a partisan, and partisanship is a very very negative thing in our society. ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी और बुरी तो लगनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी नहीं होती या कोई गलत नहीं होती, सारी अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों की अपनी चॉइस है जी, मुझे ये अच्छी लगती है पॉलिटिकल पार्टी और मुझे वो अच्छी लगती है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिकल लीडर आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आप लोगों को ब्लाइंडली नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, पीपल शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन पार्टीजनशिप। ठीक है, अगर उनकी ठीक बातें हैं तो अच्छा है, उनको अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वहां पर उसको टोकिए भी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? तभी तो डेमोक्रेसी का फायदा है कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है या हमारी पॉलिटिकल पार्टी कुछ गलत कर रही है तो हम उनको बोलें भाई कि आप गलत कर रहे हो, हालांकि आपको हमने वोट दिया है, आप हमें अच्छे लगते हो, लेकिन ये गलत बात कर रहे हो, ये गलत बात मत करो, इसे चेंज करो। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट को या पॉलिटिकल पार्टीज को हमें बोलना चाहिए जहां पर वो गलत होते हैं। सो वी शुड नॉट इन्वॉल्व इन पार्टीजनशिप। दिस इज माई suggestion, my personal suggestion to you, and this is what the book suggests to you. ठीक है, तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें बैलेंस्ड जो है ओपिनियन देना चाहिए। गलत बातों को गलत कहना चाहिए, ठीक बातों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट पार्टीजनशिप इज। नाउ पॉलिटिकल पार्टी इज हैज गॉट 3 कंपोनेंट्स। तीन पार्ट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर होता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है। हैव यू एवर सीन अ पॉलिटिकल पार्टी विदाउट अ लीडर? पीडीपी के लीडर है महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है उमर अब्दुल्ला, पैंथर्स पार्टी का लीडर है वो क्या नाम है, भीमसेन, whatever the name is, और कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी, सोनिया गांधी रादर, नॉट राहुल गांधी। तो बीजेपी के लीडर हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो इसी तरह हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है। ठीक है, तो लीडर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। दूसरा, एक्टिव मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। अब एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं? वो मेंबर्स जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडियोलॉजीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने जो डिसीजन लेने होते हैं, जो भी काम करने होते हैं, वो एक्टिव मेंबर्स और लीडर्स जो है वो मिलजुल के उस पे डिसाइड करते हैं। और तीसरे होते हैं फॉलोवर्स। फॉलोवर्स होते हैं हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया होता हमने फॉर्मली, और ना ही हमसे वो डिसीजन लेने से पहले पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर कुछ पूछते हैं जी हम ये डिसीजन लें या ना लें। हम लोग उनकी किसी फॉर्मल काम में मदद नहीं करते, लेकिन हम किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, और उनको वोट देते हैं। The success of any political party lies in the number of followers it has. ठीक है, फॉलोअर्स वो लोग हैं जिनकी पॉलिटिकल पार्टी की डिसीजन मेकिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज को प्रोपोगेट करने में और उनको वोट डालने में और उन पॉलिटिकल पार्टी का साथ देने में काम करते हैं। So these are followers. So there are 3 parts or components of a political party.
the leaders of the political party, the active members, and the followers. Right? Now, the functions of political parties. There are 7 functions of political parties that we have to learn one by one. यही political party की need में भी आएंगे, यही उसके function होंगे, यही उसके features होंगे. Right? So there are 7 functions of political parties. Number 1, all political parties contest elections. ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करना उनका मेन फंक्शन रहता है हमेशा. ठीक है? बिना इलेक्शन कंटेस्ट किए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती है. हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मेन एम इलेक्शंस को कंटेस्ट करना होता है. ठीक है? और इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स चुनती है. ठीक है? किस कैंडिडेट को खड़ा करेगी वो इलेक्शन के लिए, चाहे वो एमएलए के इलेक्शंस हो, चाहे वो एमपी के इलेक्शंस हो. ठीक है? लोकसभा के इलेक्शंस हो या विधानसभा के इलेक्शन हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने अपने कैंडिडेट्स चूज करने होते हैं. ठीक है? तो कई डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे यूएसए में मेंबर्स जो कैंडिडेट्स हैं दे आर चोजन बाय द एक्टिव मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी. इलेक्शंस होती हैं कि कौन कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन के लिए. सपोज हमारे गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्शन है और वहां पर कांग्रेस, बीजेपी, एनसी, पीडीपी ने अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं. ठीक है? तो वहां पर पहले विद इन पार्टी इलेक्शन होंगे. हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर, उन्हें कहते हैं इंटरनल इलेक्शंस. इंटरनल इलेक्शंस करवाएगी कि हमारे में से कौन, जितने भी लीडर्स हैं उनमें से कौन कैंडिडेट जो है वो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए खड़ा होगा. ठीक है? लेकिन और ऐसा अमेरिका में एक्चुअली होता है. जिस भी कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़नी है वो पहले इंटरनल इलेक्शन लड़ेगा. ठीक है? लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं ना वो चूज करते हैं कि भाई हमारे कांग्रेस में से कौन कैंडिडेट खड़ा होगा. जी बीजेपी से, बीजेपी का लीडर चूज करेगा, भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम कंटेस्ट कर लो इलेक्शन. ठीक है? सो इन इंडिया the candidates are not elected democratically. I hope you are understanding this point. समझ आ रहा है बेटा ये पॉइंट सबको? बेटा आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? ठीक है? जहां पर नहीं समझ आएगा प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन रिपीट दैट पॉइंट. ओके गुड. तो पॉलिटिकल पार्टीज में कैंडिडेट चूज करने के लिए 2 तरीके होते हैं. एक डेमोक्रेटिक तरीका होता है, इंटरनल इलेक्शंस होते हैं जैसे कि अमेरिका में होते हैं. ठीक है? और इंडिया में कैंडिडेट कैसे चूज होते हैं? लीडर्स चूज करते हैं. जी तुम खड़े हो जाओ गांधीनगर से, तुम खड़े हो जाओ बड़ी ब्राह्मणा से, तुम खड़े हो जाओ सिटी से. कोई इलेक्शंस नहीं होते इंटरनल. ठीक है? दूसरा फंक्शन है पॉलिटिकल, पहला फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का टू कंटेस्ट इलेक्शंस. सेकंड फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का टू पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. और इन्हीं पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज को वोट मिलते हैं. ठीक है? सो पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम. ठीक है? तो पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत बड़ा काम होता है क्या, कि बहुत बड़ा काम होता है कि अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाने, और ऐसे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाने जो ज्यादातर लोगों को पसंद आए और ज्यादा से ज्यादा लोग उनको उस बेसिस पे वोट करें. इसके लिए वो क्या करते हैं कि जितने लोगों के ओपिनियंस होते हैं ना उन सबको ग्रुप करते हैं इनटू फ्यू पॉलिसीज. उनका 10 या 15 लाइन का एजेंडा होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, 10 या 15 लाइन का. उस 10 और 15 लाइन में
उन्होंने पूरी कंट्री के लोगों का जो जो ओपिनियंस होते हैं ना, कि वो क्या चाहते हैं, उन सबको समराइज कर लिया होता है। ठीक है, जितने ज्यादा लोगों को लगेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी तो मेरे बारे में भी सोच रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी तो मेरे बारे में भी सोच रही है, उतने ज्यादा लोग उनको वोट देंगे। ठीक है, सो पॉलिटिकल पार्टी रिड्यूसेस वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस व्हिच इट सपोर्ट्स। ठीक है, और जब गवर्नमेंट बनती है, उन्हीं पॉलिसीज के बेसिस पे फिर रूलिंग पार्टी जो होती है वो लॉ बनाती है। ठीक है, आपने अभी हम आगे पढ़ेंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, और देखेंगे कि ये जो आर्टिकल 370 को जम्मू से हटाया गया है, ये बीजेपी ने क्यों हटाया? ये बीजेपी की पॉलिसी थी बेटा, उसकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में ये लिखा था, एजेंडा में लिखा था। ठीक है, और फिर बीजेपी ने उसी पे लॉ बनाया। ठीक है, तो जब हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, तो हमें उसके एजेंडा पूरे क्लियर होने चाहिए। किसी के कहने पे वोट नहीं देना चाहिए कि वो कह रहा है ये पार्टी बड़ी अच्छी है तो मैं भी वोट दे देता हूँ। पहले खुद देखिए कि उसके एजेंडा क्या है, और फिर उसको वोट दीजिए, क्योंकि उसी एजेंडा के बेसिस पे फिर वो पॉलिटिकल पार्टी लॉज भी बनाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेकंड फर्स्ट फंक्शन हो गया कंटेस्टिंग इलेक्शन, सेकंड फंक्शन हो गया फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, थर्ड फंक्शन हो गया मेकिंग लॉज। ठीक है, जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, रूलिंग पार्टी बन जाती है, तो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं पॉलिसीज के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी लॉ बनाती है। जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसका फंक्शन होता है लॉ बनाना। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करें, कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स के अंडर, within the limits of constitution, the political parties they make laws for the country। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ये तो हमें पता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ही जो हैं वो गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट चलाती हैं। समझ आ गया? उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का रोल भी तो पॉलिटिकल पार्टीज ही रोल प्ले करती हैं। कैसे? व्हाई इज ऑपोजिशन सो इंपॉर्टेंट? ऑपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज they criticize government for its failures and wrong policies। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है, कोई गलत पॉलिसी बनाती है, कहीं पे कुछ काम करने में फेल हो जाती है, तो कोई लोकसभा के अंदर भी तो कोई, या विधानसभा के अंदर भी तो कोई होना चाहिए जो गवर्नमेंट को बोले कि आपने ये गलत किया। ठीक है, और फिर ऑपोजिशन जो है लोगों को मोबिलाइज भी करती है, अभी गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, आप सबको गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये रोल है ऑपोजिशन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी में। आप ये मत सोचिए कि ऑपोजिशन का रोल हमेशा नेगेटिव होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इन अ डेमोक्रेसी दैट विल हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक better laws, that will help the people to be ruled in a better way। So having a strong opposition is very good। जैसे आजकल इंडिया में हमारी रूलिंग पार्टी का कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं है। कांग्रेस हैज नॉट रिमेन्ड अ स्ट्रॉन्ग पार्टी, सो दैट इज not good for a country। The government should always have a strong opposition। It is good for the government also, it is good for the people also। राइट, उसके बाद अगला अगला फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, दे शेप पब्लिक ओपिनियन। हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन? वो लोगों को पहले बताती हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, और फिर लोग जो हैं लोगों को उस इशू पे मोबिलाइज करती है। पॉलिटिकल पार्टीज मूवमेंट्स भी लॉन्च करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो प्रोटेस्ट लॉन्च करती हैं कि ये गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ इशू को वो हाईलाइट करती हैं। ठीक है, और
लोगों के ओपिनियन को शेप करती हैं। भाई अब ये गलत हो रहा है, आप सारे हमारे साथ खड़े हो जाएं और हम ये चीज चेंज करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का, दैट इट इज अ वे टू एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब ये ध्यान ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट का मतलब क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, स्कीम्स लेके आती है गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज आर अ वे टू रीच टू दोज वेलफेयर स्कीम्स implemented by the government। ठीक है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, हमारे गांव में जी बहुत फ्लड आ गया है, जिससे कि फसल खराब हो गई है। फसल खराब हो गई है तो सरकार ने कहा है, हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि लोगों को मुआवजा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगी। ठीक है। अब वो कंपनसेशन कैसे मिलेगी? लोग कहते हैं जी हमारा जी 6 महीने हो गए अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं मिली। अब गवर्नमेंट के पास कैसे जाएंगे कंपनसेशन लेने? वो क्या करेंगे, वो अपनी किसी लोकल पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच करेंगे, लोकल पॉलिटिकल लीडर को अप्रोच करेंगे, कहेंगे जी हमें कंपनसेशन नहीं मिली। फिर वो लोकल लीडर उन लोगों को ये जताने के लिए कि भाई मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं और तुम मेरे अगली बार भी मुझे वोट देना, वो लोकल लीडर जो है फटाफट से उनको वो स्कीम दिलवाने में मदद करेगा, वो कंपनसेशन दिलवाने में मदद करेगा। सो इन अ वे पॉलिटिकल पार्टीज दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल। रिस्पॉन्सिव होना मतलब लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली काम करना। ठीक है, सो दैट द पीपल कैन वोट फॉर देम। So these are the 7 functions of political parties. I'll repeat these functions. These are very easy functions. Number 1, they contest elections. ठीक है। उसके बाद सेकंड है, they form policies and programs. Third, they make laws. Fourth, they form and run government. Fifth, they also play a role of opposition. Sixth, they shape public opinion. And seventh, they are a way to access government machinery and welfare schemes. समझ आया? These are the 7 functions of political parties. उसके बाद what is the necessity of political parties? What is the need of political parties? तो जितने भी ये जो 7 फंक्शन हमने पढ़े हैं ना, ये हमारी नेसेसिटी में भी आएंगे। समझ आ गया? ये 7 के 7 फंक्शन हमारी नेसेसिटी या नीड में भी आएंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है आपको कि व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये सातों के सातों फंक्शंस आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है। उसके साथ अगर आपने कुछ और एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप ये लिख सकते हो कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो कितनी मुश्किल हो। ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप को चलाने में कितनी मुश्किल हो। ठीक है। अच्छा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो इलेक्शंस हो सकती हैं? पहले तो ये बात का जवाब दीजिए मुझे। कैन देयर बी इलेक्शंस इफ देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज? Can there be elections if there are no political parties? Very good, Akriti. Akriti has given the answer. Very good. Sabhyata ने भी आंसर दे दिया। Yes, there can be elections if there are no political parties. How? Through independent candidates. आपने अभी डीडीसी की इलेक्शंस का भी रिजल्ट देखा है कि कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं, लेकिन डीडीसी की इलेक्शन तो लोकल इलेक्शंस हैं। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को पूरी स्टेट चलानी हो या पूरी कंट्री चलानी हो तो वो चला सकते हैं? नहीं चला सकते। एक ओनली 1 पर्सन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो गया कि वो एक अकेला बंदा है, उसका ग्रुप नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है उसके साथ।
So it would be very difficult for an independent candidate to form government, number one, or to run government. Right? It is almost impossible. That is why we have political parties. Right? तो पॉलिटिकल पार्टीज जितनी ज्यादा हमारी वर्ल्ड में जितनी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज बन रही हैं, उतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं, और जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं उतनी हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है. ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है. अब क्वेश्चन आता है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए. हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारी कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है. मैं भी बना सकती हूँ. I mean, anyone from your family, if they want, they can form a political party. So in a democracy, any group of citizens is free to form a political party. Right? अभी तक 750 political parties have been registered with the Election Commission of India. ठीक है, क्या आपको 750 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पता है? हम ज्यादा से ज्यादा कितनी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बता सकते हैं? 10, 15, 20. लेकिन 750 पॉलिटिकल पार्टीज हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है. तो आप सोचो कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी कंट्री में. लेकिन सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर नॉट सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन. छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल और बड़ी लोकल लेवल पे. ठीक है, सीरियस कंटेंडर्स इलेक्शन में बहुत थोड़ी हैं, थोड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी how many major or effective political parties are good for a democracy? This is a very important question कि एक डेमोक्रेसी के लिए कितनी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, so we have the answer to this. In certain countries like China, there is only one political party. Right? There is only one political party in some countries like China. This is called as a one party system. उसको कहते हैं वन पार्टी सिस्टम. लेकिन वन पार्टी सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास चॉइस ही नहीं है. एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना, क्या वो डेमोक्रेसी हुई? नहीं हुई. समझ आया आपको? अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं होगी, और अगर लोगों के पास चॉइस ही नहीं है तो वो डेमोक्रेसी कैसी हुई? वो तो डेमोक्रेसी हुई ही नहीं. तो वन पार्टी सिस्टम, वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एट ऑल. समझ आ गया? तो कम से कम दो पॉलिटिकल पार्टीज तो होनी चाहिए जी. उसे कहते हैं, जहां पर जिन कंट्रीज में दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, या दो पॉलिटिकल पार्टीज वो होती हैं जो कि इलेक्शंस लड़ती हैं या जिनके चांस है इलेक्शन जीतने की. राइट? In some countries, only two main political parties have a serious chance to form the government. Such system is called two-party system. जैसे कि हमारा यूएसए और यूके में है, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स. ठीक है, तो यही दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती हैं. तो वो टू पार्टी सिस्टम है. दिस इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बिकॉज पीपल हैव अ चॉइस हियर. Right? So one party system, two party system. But in certain countries there are more than two political parties who have a chance to win the elections and form the government. That is called a multi-party system. So a multi-party system is a system in which more than two political parties have a serious chance to win the election and form the government. Right? So it is called multi-party system, and India has got a multi-party system. Right? India has got a multi-party system. हमारी कंट्री में
बहुत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शंस जीतती भी हैं, राइट, और गवर्नमेंट बनाती हैं। सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। और आजकल तो कोलिशन गवर्नमेंट्स बन रही हैं। कोलिशन गवर्नमेंट मींस कि 3 4 5 6 पॉलिटिकल पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बना रही है। समझ आ गया? When several political parties in a multi-party system join hands for the purpose of electing, contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. तो दो तरह की पार्टनरशिप होती है। एक को कहते हैं अलायंस या फ्रंट, और एक को कहते हैं कोलिशन। ठीक है? जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, उसे अलायंस कहते हैं। और जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है और बाद में वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं, उसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। आई थिंक यू हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन कोलिशन गवर्नमेंट एंड एन अलायंस। ठीक है? जैसे आजकल जो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, गुड गुड आकृति, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो जो बीजेपी और उसकी साथ की पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर बनाई हुई है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, यस यस बिहार में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है यूपीए, जो कांग्रेस और उसके साथ उसकी मिलीजुली पार्टीज ने बनाई हुई है। ठीक है? ये इलेक्शन लड़ने से पहले ही एक दूसरे के साथ लोगों को डिक्लेयर किया होता है इन्होंने कि एक दूसरे के साथ हम गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है? लेकिन कोलिशन क्या होता है? जैसे कि अभी कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, तो बीजेपी और पीडीपी ने एक दूसरे के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली। दैट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट। उन्होंने इलेक्शन के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाए, पहले नहीं मिलाए थे। ठीक है? तो दैट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलिशन एंड एन अलायंस, राइट? सो which party system is good, 1 2 or 3 multi party system? So one party system is not a democratic system at all, so we'll not discuss that. 2 or multi party system में से कौन सा system better है? तो आपको पता है that we cannot assign a political party system to any particular country. Every party system is conditioned by the circumstances and situations of that country. Now, America or Britain, they are not such diverse countries. उनमें इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है? उनमें ज्यादातर जो डिफरेंसेस है वो क्लास डिफरेंसेस हैं। एक हाई क्लास लोग, रिच लोग, और एक लो क्लास लोग, पुअर लोग। क्लास डिफरेंसेस ज्यादा हैं, या एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, इस तरह के डिफरेंसेस हैं बस। ठीक है? इसीलिए वहां पे 2 पार्टी सिस्टम भी चलता है। लेकिन हमारी इंडिया में जहां पर इतनी डाइवर्सिटी है कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज तो सारे लोगों की बारे में, सारे लोगों को की ओपिनियंस को गैदर कर ही नहीं पाएंगी। इसीलिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम की जरूरत है, इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द huge diversity of India. We have this multi-party system in India, right? So we can say that no party system is ideal for all countries and all situations. All countries are conditioned by their own circumstances and thus adopt their political party system. I hope you have understood this. ठीक है? Now comes national political parties and state political parties. ठीक है? सबसे पहले नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमारी कंट्री, फेडरलिज्म चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारी कंट्री जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर पे बनी हुई है। मतलब एक यूनियन गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं।
जो स्टेट्स को चलाती हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा चैप्टर फेडरलिज्म में क्लियर हो गया था। ठीक है, तो इसी बेसिस पे एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है जो पूरे कंट्री के लिए इलेक्शंस लड़ती हैं, और एक रीजनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शंस लड़ते हैं। ठीक है, अब क्या क्राइटेरिया है उनके, वो हमने देखना है। There are some country-wide political parties which are called as national political parties. ठीक है, right? ये जो कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जिनको इलेक्शन कमीशन जो है वो स्पेशल स्टेटस देता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत जगह जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, although election commission treats all political parties equally, but it offers some special facilities to large and established political parties. ठीक है, उन पॉलिटिकल पार्टीज को एक यूनिक सिंबल मिलता है। ठीक है, और उन पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ अदर प्रिविलेज भी मिलती हैं बाकी पार्टी से। दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉल्ड एज रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, state and national political parties. ठीक है, अब in order to be a state party, यहाँ की स्टेट पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है? सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बन जाती हैं, कहीं सिर्फ लोकल लेवल पे ही रहती हैं। अब उनको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% of total votes in a state legislative assembly and 2 seats, 6% of votes and 2 seats in legislative assembly. ठीक है, पूरी स्टेट में जब इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें 6% कम से कम वोट चाहिए, और कम से कम 2 सीट्स जो है वो विधानसभा में अगर वो जीतती है पॉलिटिकल पार्टी, तभी उसे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, अदरवाइज नहीं कहेंगे। समझ आ गया? और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या है कि 6% ऑफ टोटल लोकसभा वोट्स। ठीक है, लोकसभा की इलेक्शन में पूरी कंट्री जब वोट करती है उसमें से 6% कम से कम वोट जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलने चाहिए, और 4 सीट्स इन लोकसभा, और एटलीस्ट 4 सीट्स इन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। ठीक है, तो उसको या तो 6% वोट लोकसभा में जीतने हैं, ठीक है, और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स की इलेक्शन में टोटल 6% वोट होने चाहिए उसके, या उसके पूरी कंट्री की जब लोकसभा की इलेक्शन होती है उसमें 6% वोट होने चाहिए, और एंड 4 सीट्स इन लोकसभा, दैट इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मैं दोबारा बोल देती हूं ताकि आप सबको याद हो जाए। इन ऑर्डर टू बी अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, a political party should be able to win at least 6% of total votes in assembly election and at least 2 seats. And in order to be a national political party, the political party should be able to win 6% of total votes in Lok Sabha elections, or 6% of total votes in the assembly elections of at least 4 states, and 4 seats in Lok Sabha elections. ये आपको याद करना है पॉइंट। ठीक है, अच्छी तरह से याद करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 6% की जगह 4% नहीं लिखना, 2 सीट्स की जगह 4 सीट्स नहीं लिखना, 4 सीट्स की जगह 2 सीट्स मत लिखना। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमारी जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे कांग्रेस कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी और एनसीपी। ठीक है,
इन सब के बारे में हमने इनकी अलग अलग जो हैं वो फीचर्स पढ़ने हैं, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग मच ऑफ टाइम, तो मैं इनके फीचर्स आज नहीं पढ़ाऊंगी, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। ठीक है, सो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज रीजनल पार्टीज। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जैसे कि हमारी स्टेट की कौन सी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ठीक है, उसी तरह बीजू जनता दल जो है, बीजेडी जिसे कहते हैं, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, ये हर एक स्टेट की स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, और ये जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है ना, पिछले कुछ सालों में इनकी गिनती बढ़ी है, दे हैव इंक्रीज्ड इन नंबर एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, और जितनी भी लोकसभा इलेक्शंस होती है ना, उसमें ये पार्टिसिपेट करती हैं, और कई बार इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट भी बनाई है या अलायंस गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका स्ट्रेंथन होना इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, उनका स्ट्रेंथन होना इज वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी, राइट। दिस इज द चार्ट दैट शोज कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी स्टेट में है हमारे इंडिया में। ठीक है, आपको ये आपको पता है आज से 2 या 3 साल पहले ये बहुत ये इस चार्ट में से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कि फॉरवर्ड ब्लॉक, ये देखो ध्यान से, फॉरवर्ड ब्लॉक किस स्टेट की पार्टी है, या रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी किस स्टेट की पार्टी है। हमें तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का पता है कि वो वेस्ट बंगाल में है, इन दोनों का नहीं पता था। ठीक है, उसी तरह इसका तो पता चल जाएगा, मणिपुर पीपल्स पार्टी मणिपुर में है, मिजोरम या जोरम नेशनलिस्ट पार्टी या मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो मिजोरम में है। ठीक है, इंडिजिनस नेशनल पार्टी ऑफ त्रिपुरा, ये त्रिपुरा की पार्टी है। मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी, पता है मेघालय की है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, ये भी मेघालय की है। तेलुगु देशम और तेलंगाना, ये तेलंगाना की पार्टीज हैं। ठीक है, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो झारखंड की पॉलिटिकल पार्टी है और ओडिशा में भी है। ठीक है, उसी तरह राष्ट्रीय लोक दल समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश की मेन पार्टीज हैं। ठीक है, शिरोमणि अकाली दल कहां पर है, पंजाब में। लोकदल और इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में। ठीक है, तो इसी तरह ज्यादातर बेटा सभ्यता, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर किसी सपोज कॉन्टिन्यूसली 3 इलेक्शंस में वो सपोज मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का चलो मैं पहले क्वेश्चन बोलती हूँ। सभ्यता हैज आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन कि ये जो क्राइटेरिया है नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का, वो क्राइटेरिया जो है वो वंस इन अ लाइफ टाइम है कि वो उनको हर बार पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। सपोज हम जम्मू का एग्जांपल लेते हैं। जम्मू में पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि रीजनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, उसने एक बार 6% वोट और 2 सीट्स जीत ली लोकसभा की, सॉरी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, विधानसभा की इलेक्शन में। ठीक है, और अगली बार नहीं जीती, तो क्या वो रीजनल पार्टी नहीं रहेगी, वो रहेगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली 3 बार अगर वो ऐसा नहीं कर पाती, क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाती, फिर उसे उसकी जो रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी के जो हमने जो इलेक्शन कमीशन ने दिया होता है उसे क्राइटेरिया, उसे हटा लेती है। समझ आया सभ्यता? एक एक बार जीत लिया, 2 बार जीत लिया, तीसरी बार हार गई, तो उससे उसका खत्म नहीं हो जाती उसकी सैंक्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली 3 बार अगर वो हारेगी, फिर उसकी सैंक्शन खत्म हो जाती है। हैव यू अंडरस्टूड? गुड, दैट्स गुड। And that was a very good point made there, because I forgot to tell it to everyone. All right, I think उसके बाद जो हमारा challenges to political party है, ये हमारा और रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
Okay. Now, should I end the meeting, everyone? Is there anything you need to ask? Chalo. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, beta. Great. No doubt. Thank you, Sabita. Thank you, Akul.